Sir, thank you very much for. Please, आप बोले. Sir, thank you very much for permitting me to speak on this very important issue. Sir, all of us are here gathered today, and we have the privilege of sitting in Parliament in the Raj Sabha, having been elected by the Council of States. Sir, I want to know, when we enter, we fill up a form where we are identified by our gender. I want to know, all of you have been self-declared. You have declared that you are man or woman. Has some medical board endorsed that? And since, are we to be considered privileged that nobody can question us about our gender identity, but that we will question the transgender and empower policing of the states, that they will go and identify a human being who has the same constitutional rights as you and I. Sir, the Supreme Court appointed a panel which asked the centre to withdraw transgender bill that removes the rights to gender self-discrimination. This advisory committee was headed by the former Delhi High Court Judge Justice Asha Menon. The court has clearly categorized and said the meeting was to be attended by 8 members appointed by the court. Neither of the 7 secretaries to the union government appointed as ex officio members to the panel by the court have attended the meeting. Shame, shame. You don't attend the meeting. Even the Supreme Court orders. Shame. And then it is learned that the Joint Secretary of the Social Justice Ministry, who was to serve as the committee's convener, also did not attend the meeting. Shame. Did the centre constitute any kind of consultation or discussion with the citizens of this country who are known as transgenders? The committee had noted, sir, that the proposal and definition of transgender persons excluded the people who do not identify with sex as assigned to them at birth. Sir, ये जो हम बचपन से हम अपने जहन पे बिठा देते हैं कि लड़का हो तो नीला रंग पहनेगा, लड़की हो तो गुलाबी पहनेगी, ये अपनी अपनी पहचान है. ये आज का दिन, ये जो बिल आप ले आ रहे हैं, जहां एक मेडिकल बोर्ड, एक पढ़ा लिखा इंसान, देश के नागरिक को हम खड़ा करके किसके सामने? एक मेडिकल बोर्ड के सामने, और वो फैसला करेगा कि आपका जेंडर क्या है. ये कोई तरीका होता है? Is this within the human rights of a citizen of this country? Do we do this knowing what the transgressions are of medical boards? और सर, हम ला रहे हैं अधिकार में डीएम को. अरे डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट फैसला करेगा. डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट. पता नहीं आप लोगों में से कितने लोग इलेक्शन लड़े हैं और लोकसभा बल्दिया कुछ कर रहे हैं, तो आपको समझ में आएगी डीएम का क्या कानून की रोल है और उसका क्या जानकारी है. सर, आई वांट टू टेक अ स्ट्रॉ पोल ऑफ दिस हाउस. क्या आप जानते हैं कि LGBTQIA का मीनिंग क्या है? अगर हम में से अगर 4 लोग खड़े होके बता सकते हैं तो मैं मंजूर हूं. That we can authorize some medical board to say this. You have no awareness. जब हमारी जानकारी पार्लियामेंट में नहीं है तो सड़कों पे कहां से जानकारी आएगी? You are just denying people. This is not just a bill. This is a test of us as a humanity.
क्या हम इंसान भी हैं? ये गुरूर कि हमारे पास 300 लोग हैं या हम वोट के ताकत पे हम बिल को ला देंगे, जबरदस्ती घसीट के लोगों को हम ले जाएंगे, बुलडोज करेंगे, ये गुरूर है। इसमें संविधान को आपको दिया हुआ जगह नहीं है। संविधान उन लोगों के साथ है जो ट्रांसजेंडर आज है, और ये कोई नई बात नहीं। इसमें नालसा कानून बना हुआ था। अरे प्रधानमंत्री जी ने खुद कहा कि वो नॉन बायोलॉजिकल है, तो उसके बाद हम बहस क्यों करते हैं इधर? आपने कहा है। आप इधर देख के बोलिए माननीय सदस्य। अरे आंटी, माननीय ये सदस्य, तो पीएम ने कहा। आप पीठ को देखिए। माननीय सदस्य, आप उधर बहस नहीं करिए, आप इधर देख के बोलिए ना। बहुत आपस अच्छी में बात बात नहीं, है। आपस में बात नहीं। मैं प्रधानमंत्री का तारीफ कर रही हूँ आप उधर तारीफ ना करके इधर तारीफ कि करिए। हाँ, कि वो इतने आगे सोचकर, इतना बढ़ावा देखकर उन्होंने पहचान लिया, तो इट्स अ वेरी गुड थिंग। मैं उनकी कुछ नुकसान बुरा नहीं कर रही हूँ, मैं बुराई नहीं कर रही हूँ सर। तो मैं कह रही हूँ अच्छी बात है, क्योंकि इतने और संविधान के अंदर हमने इनको पहचान की। ट्रांसजेंडर सुप्रीम कोर्ट में बैठे हैं, ट्रांसजेंडर पुलिस में भी है, ट्रांसजेंडर खेल के मैदान में भी है, जो इस देश को रोशन करे हैं मेडल्स जीत के आके। और जो हमारे अवार्ड विनर्स हैं उनको प्रधानमंत्री जी ने पद्मश्री भी दिया हुआ है। तो कौन सी शर्म की बात है? तो हम क्यों आज ये नहीं पहचान रहे और नए कानून लाके इनके ऊपर ठोक रहे हैं और ठोस रहे हैं? ये गलत बात। और क्या हम ही कुछ नया सोच विचार में आए हैं क्या? एग्जिस्टेंस की बात नहीं है सर, डिस्क्रिमिनेशन की बात है। एक तो सर एसआईआर लगा के लाखों लोगों को इलेक्शन वोटर्स लिस्ट से हटा दिए, तो आप ट्रांसजेंडर पे भी एसआईआर कर रहे हैं सर, ताकि इनको जो दिया गया आधार कार्ड, वी हैव गिवन आधार कार्ड्स, यू हैव गिवन देम आइडेंटिटीज, और इसमें रेट्रोस्पेक्ट इफेक्ट, रेट्रोस्पेक्ट माने वापस जाके हम आएंगे। ये आदत है सरकार की, हर वक्त रिवाइंड रिप्ले करते रहते हैं, इतिहास को भी रिवाइंड करते हैं, नेहरू जी को रोज याद करते हैं, आगे जाके क्या करना ये नहीं सोचते हैं। और अगर सोच भी आई तो ये करेंगे कि जो हकदार है, जिनके अधिकार है, जो संविधान में सम्मान है, उनको हम हटा के घसीट के क्रिमिनलाइज कर देंगे। आप बताइए, आपके जानकारी में कोई ऐसा परिवार नहीं है जिसका बच्चा ट्रांसजेंडर हो? अगर हम आम जनता के बीच में घूमेंगे तो हम जानते हैं वैसे परिवारों। Families don't have the wherewithal, the language, the ability to communicate, to absolve their children of this social stigma. तो कई बार हमारे घरों में जो हम क्रिमिनलाइज करके उनको टॉर्चर करते हैं अपने बच्चों को, सुधार के बीच में आए, एक कंपार्टमेंट में बैठ जाओ, तेरी शादी नहीं होगी, तेरी ये नहीं होगी, हम कह के हमारे बच्चों को हम खुद नुकसान दिलाते हैं। तो वो करते क्या है? भाग जाते हैं, क्योंकि घर में दम घुट रहा है, भाग जाते हैं, बाहर चले जाते हैं। उनको कौन संभालते हैं? There are other decent citizens who get together and give them shelter, who give them protection, उनका देखभाल, एक टाइम का खाना, कहीं ना कहीं वो संभाल लेते हैं। आज के दिन आप वो सारे हटा देंगे। एल्योरमेंट बोल रहे हैं। जब हम कहते हैं कि इस देश में जो भी मजहब में पैदा है, वैसे तो मुझे माइक की जरूरी नहीं है सर, मेरी आवाज बुलंद रहती है, ये मैं बता दूं। सर अब हम मेडिकल कंट्रोल लागू करेंगे, सेल्फ आइडेंटिफिकेशन निकाल दे। मैं नहीं जानती हूं मैं कौन हूं, आप जानेंगे मैं कौन हूं।
Shame. ये कौन सी तरीका है? आप कौन होते हैं बताने के लिए कि मैं कौन हूं? यू कांट रिकग्नाइज दैट। और हमारे पहचान, हमारा पुराना पहचान आप रद्द कर दे रहे हैं, निकाल दे रहे हैं इससे। और हमारी प्राइवेसी जो कॉन्स्टिट्यूशन में हमें दिया गया है कि आई एम एंटाइटल्ड टू माई प्रिवेसी, आप इसका डंडोरा पीटेंगे, हॉस्पिटल में रिपोर्ट करेंगे कि कौन सेक्स चेंज ऑपरेशन कर रहा है, ये बोर्ड को रिपोर्ट करना है। Shame. कौन है ये लोग? कौन से अधिकार से वो रिपोर्ट करेंगे? कैसे कानून आप लागू करेंगे? अरे पॉक्सो केस में नन्हे मुन्ने जान का जब बलात्कार होता है, शोषण होता है, वो केस पहुंचने में करीब करीब 5 साल लग जाते हैं। महिलाओं का बलात्कार हर 16 मिनट में एक हो रहा है। आपने कहीं देखा इंसाफ? Have you been able to get justice for any of them? The victims, they are tortured and kept alive. The grievance and the problems that they suffer emotionally, traumatically, is kept alive by these cases for 5 years. फास्ट ट्रैक कोर्ट का अंत क्या हुआ? कोई फास्ट ट्रैक नहीं है सर, ट्रैकलेस ये गाड़ी चलते रहता है। सर, डिस्पाइट दैट हमारे जजेस, पुलिस ऑफिसर्स, लीडर्स, माने हमारे अपने कौम में लोग होंगे, आर्टिस्ट, चेंज मेकर्स, all of them belong to the transgender community. सर, इस कानून में जो आप इतना जल्दबाजी में ले आए हैं, दुनिया भर में युद्ध चल रही है मगर हम इसको प्रायोरिटी दिए हैं, और प्रायोरिटी इसलिए कि इनको नुकसान पहुंचा दे। कुल मिला के इस भारत देश में करीब करीब 5 लाख लोग हैं ट्रांसजेंडर्स, और ये 5 लाख का परेशानी है सरकार को कि 5 लाख नाजायज फायदा उठा के सरकार का दिया हुआ इतना ढेरा, इतना लॉटरी वो लोग लूट रहे हैं। इसीलिए हम ये कानून ले आए हैं। ये 5 लाख लोगों में कई लोग लड़ भिड़ के यहां तक पहुंच गए कि समाज में कहीं ना कहीं स्थाई पे वो आ सके। और सर, आज के दिन हमें ये देखा जाएगा कि हम कैसे लोग हैं इस देश में। मेरा भारत महान, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा हम कहते हैं। कैसे हिंदुस्तान हमारा? यही कि द्वेष, नफरत पैदा करके हमारी अंधविश्वास में, हमारी समझ की कमियां में हम दूसरों को दोष देके खड़ा करते हैं। दिस इज नॉट राइट। अब SIR के बारे में आप जिक्र करते हैं, इलेक्शन कमीशन ने पहचान लिया सर ट्रांसजेंडर को। इलेक्शन कमीशन वोट की हक दिए हैं। तेलंगाना मेरा जो स्टेट है, हम उसमें आसरा पेंशन कर दिए हैं ट्रांसजेंडर्स को, नौकरियां दिए हैं, घरें दिए हैं, Very good. मौका दिए हैं। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने ये काम किया है। केंद्र सरकार के खिलाफ सोच सकते हैं वो, मगर वहां लोग खुश हैं क्योंकि वो सुरक्षित है। तो सर, ये इलेक्टोरल फॉर्म में आप डिलीट करेंगे। अब जितने पासपोर्ट्स आपने इश्यू किया उसका क्या हालात है? आधार कार्ड का अब क्या होगा? ये सब समझाइए ना। मीटिंग पे नहीं जाते हैं, बात नहीं करते हैं, ट्रांसजेंडर से संपर्क नहीं करते हैं, मगर आके बिल लगा देते हैं। Shame. सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑर्डर दिया उसके खिलाफ ये चला रहे हैं। पहले एक कानून है उसको तो रद्द नहीं करे हैं, तो दोबारा दूसरा कानून कैसे ला दिए? कौन से हक से ये कानून यहाँ पेश करे हैं? और क्या हम ही एक देश है, भारत देश, जहां ये ट्रांसजेंडर का मामला है? नहीं, विदेशों में भी, कई देशों में भी ट्रांसजेंडर इंसान यही समस्या लेके वहां पलते हैं, जीते हैं। और बाकी विदेश किसी ने ये मना नहीं किया। सर, बांग्लादेश, श्रीलंका, आखिर पाकिस्तान भी ट्रांसजेंडर को पहचान के वो कानूनी दौर से उनको मदद करे हैं। आप प्राइवेसी निकाल देंगे,
डिस्क्रिमिनेशन एंड डिस्प्रपोर्शनेट क्रिमिनल प्रोविजंस आप दे रहे हैं। 5 साल का आप लाइफ सेंटेंस उनको देकर अंदर धकेल देंगे एल्योरमेंट के नाते। क्या चीज है एल्योरमेंट? कैसे साबित करेंगे आप? कई लोग अनजाने में बेचारे बोलते हैं कि नहीं नहीं मैडम, जो ट्रैफिक लाइट के पास हम रुकते हैं वो लोग आके छक्का ये मारते हैं तो वो लोग असली लोग नहीं है। तुम कैसे जानते हो भाई? आपने देखा? You don't know that. How can you be so discriminate? How do you propagate violence against trans people? मगर जो नुकसान ट्रांस पीपल को, वो कानून बहुत हल्का कानून है सर। मारो पीटो मरवा दो, बहुत हल्का सेंटेंस में आप बाहर निकल जाएंगे। मगर ट्रांस लोगों पे आप ऐसे कानून आप करे हैं जो पहले से साबित कर देता है कि ट्रांस लोग क्रिमिनल्स है। ये सोच के हम आगे बढ़ रहे हैं कि हम इनको ले आते हैं, समझाते हैं, पटाते हैं और इसीलिए वो ट्रांस बन जाते हैं। सर, ये सारे बिल्स में, ये बिल क्लॉजेस में ये निकाल देना चाहिए, ये अमेंडमेंट करना चाहिए। क्लॉज 2 ऑफ द अमेंडमेंट ऑफ सेक्शन 2 insert section 2AA under the TP Act, which means a medical board headed by a chief medical officer or a deputy chief medical officer may be appointed as central government, state government or union territory administration. Sir, Health Minister is here with due apologies. Sir, you are doing such excellent work elsewhere. But you also know, हमारे PHCs में कोई आते नहीं, तो ये कहाँ से आएंगे मेडिकल बोर्ड? कितने मेडिकल बोर्ड को हम देखे हैं। आई वॉज ऑल्सो यूनियन हेल्थ मिनिस्टर। पर्सन विथ इंटरसेक्स वेरिएशंस, माने जो पैदाइशी में इनके अलग सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, एक्सटर्नल जेनिटल या क्रोमोसोम्स और हॉर्मोन्स या मेल फीमेल बॉडी। अरे भाई, ये सिर्फ शारीरिक नहीं, मानसिक तौर से भी ट्रांसजेंडर बनते हैं। अब ना समझ को क्या समझाएं? आप ये देख लीजिए सर, ये कैसे करते हैं। ट्रांसजेंडर पर्सन मीन्स हैविंग सोशल कल्चरल आइडेंटिटीज। हम इनको हिजरा नाम देते हैं, अरवानी कहते हैं, जोगता कहते हैं, यूनक कहते हैं, मजाक उड़ाते हैं। कई कल्चर्स, खास तौर से हिंदुइज्म में सर, शादियों में हमारे साइड तेलंगाना और आंध्रा में हम उनको बुलाते हैं क्योंकि उनको हम नित्य सुमंगली मानते हैं और उनका अगर आशीर्वाद मिला तो आपका सुमंगली मंगलसूत्र सकत रहेगा। ये भी हम करते हैं। मगर आज उनको लात मार के, थूक के, उनकी बेइज्जती करके हम ऐसा नाज अनजाने में आप लोग कर रहे हैं। मैं आई होप दैट यू आर डूइंग दिस इन इग्नोरेंस, because if you are doing it consciously, then you have failed yourselves as human beings. I want that these 15 deletions should be done in this amendment bill, sir. It does not include or shall never be so included persons with different sexual orientations and self-perceived sexual identities. Binary आप समझते हैं? आप binary नहीं समझते हैं तो आप कौन होते हैं सर्टिफिकेट देने के लिए कि कौन बाइनरी है, कौन नहीं है, कौन ट्रांससेक्सुअल है, नहीं है? ये आप कैसे बोलते हैं सर? ये कानून हम ये हाउस, ये देश गवाह है सर कि हम कितना झिझकते हैं इन असलियत से। लीगल रिकॉग्निशन ऑफ सेम सेक्स मैरिज, हम उससे भाग गए, डर गए। हमने कहा कि भाई ये बायोलॉजिकल मेल और बायोलॉजिकल फीमेल का ही शादी होगा, क्योंकि हम समझते नहीं है शादी सिर्फ सेक्स की नहीं होती है। शादी मानसिक तौर और साथ ही हमारा पार्टनर बनते हैं। सोशल वैल्यू के खिलाफ है ये सारा मॉरल पुलिस, और कोई कामकाज नहीं है। हम देखेंगे कि लव जिहाद हो गया, फलाना हो गया, ढिमकाना हो गया, ये बुर्खा नहीं पहनना, ये समझाएंगे हमें।
ये होगा। अरे आंटी आप चुप रहिए। आप इधर देख के बात करो आप। 2019 का ट्रांसजेंडर प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स जो है, हक है, उनको ब्यूरोक्रेटिक सर्टिफिकेशन देके सेल्फ आइडेंटिफिकेशन हम निकाल दे रहे हैं। ये गलत है, ये गैर कानूनी काम है और ये लागू नहीं हो सकता। क्रिमिनल पेनाल्टीज अगेंस्ट ट्रांसजेंडर्स और भी कमजोर है सर, महिलाओं के खिलाफ जो होता है उससे भी कमजोर है। और हम जानते हैं ये नफरत, ये इग्नोरेंस जो यहां हम देख रहे हैं, ये सब लागू होगा समाज में अगर आज के दिन ये बिल यहां से जाएगी। LGBTQ को कहा गया ये एलिटिस्ट है, कल्चरल नॉर्म्स के खिलाफ। अरे भाई अभी तो होली गया, अब भूल गए कि हमारे त्योहारों में मर्द भी महिला का ड्रेस पहन के नाचते हैं। हमारे पुलिस ऑफिसर्स हैं ऐसे वाले, कैसे भूल जाते हैं? जब चाहते पार्लियामेंट में आके हम दूध के धुले बन जाते हैं और सड़क पे जाके कुछ और ही बनते हैं। There was no consultation done. पहले चर्चा करिए, बातचीत करिए, सीखिए, समझिए और फिर कानून लाके आप लागू करिए। हम आपका रेस्पेक्ट करेंगे। इग्नोरेंस में, नफरत में, द्वेष फैला के 5 लाख लोगों पर आप इतना जुल्म करना, इसको जुल्मी है। महात्मा गांधी जी ने कहा, हालांकि आप मानते नहीं, आपको गोडसे ने क्या कहा मुझे नहीं पता, मगर महात्मा गांधी जी ने कहा था, even if you're a minority of one, the truth is the truth. Yeah, good one. Today the truth stands with the transgender community who have been in existence from the time you and I have been in existence. Truth stands with dignity. Please उनका मर्यादा मत लूटिए। And truth demands that we do not remain silent spectators to this injustice. जब सर इतना नाइंसाफी, गैर कानूनी काम चल रहा है तो हमें पहचानना चाहिए। और ये भी आप देखिए कि कितने देश, मैंने कहा बांग्लादेश, श्रीलंका आपको पता ही नहीं, ये और भी देश ने अपनाया है और वहां लोग आराम से रह रहे हैं, डिग्निटी से रह रहे हैं, कोई किसी का लूट वहां नहीं मचा है। मगर हम यहाँ आके हम बदल जाते हैं और 1.4 करोड़ पीपल है भारत देश में, जिसमें से करीब 5 लाख लोग ट्रांसजेंडर। तो ये 5 लाख लोगों पर हम इतना डर रहे, इतने कमजोर है हम, हमारी रिलीजन इतना कमजोर है, हमारी बिलीफ सिस्टम इतनी कमजोर है कि ये 5 लाख लोगों को अगर हम काबू में नहीं लाएंगे, हम नहीं उनको कैद करेंगे, तो हम सब, हमारी जन्मपत्री बदल जाएगी, हमारा गोत्र बदल जाएंगे। ऐसे कैसे होता है सर? सो व्हाट आई एम रिक्वेस्टिंग इज दैट नालसा विच वाज देयर, वो भी तो कानूनी दौर से हुआ सर। नालसा के जो एग्जिस्टिंग एक्ट है, यू हैव टू रेस्पेक्ट दैट। आप संक्षिप्त करिए। नाम के शिवाजी है, काम के तो नहीं है। आई नो दैट, आई रेस्पेक्ट दैट, बट उनको बोलने नहीं दिए तो मेरी कसूर नहीं है वो। आपका सर जो समय अवधि थी सर समाप्त हो गई। आपकी पार्टी के पास भी समय नहीं रहा। If we are collectively accountable and responsible, you are going to be witness to history. Please have the courage to stand up and say, yes, this was a mistake and this bill will not be brought forward. We will take it back. Have the courage to stand by. इंसानियत के नाम पे खड़े हो जाइए और आपको धन्यवाद। सेलेक्ट कमिटी पे नहीं तो भिजवा दीजिए। आपकी बात। Please don't force this bill because you have the brute majority. Don't do it.